Welcome. This is revision recording video 2. In video first, we have completed unit number 3 and 4 revision. Now let's move to the worksheet number 2, unit number 5, then unit number 6, and then worksheet number 3. So in worksheet number 2, first question is in an if-else construct, if block is executed when condition expression evaluates to true. So the answer of first is true. If तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन का आंसर ट्रू आता है. द बॉडी ऑफ अ execute repeatedly as long as condition remains true. The answer is loop. The body of a loop executes repeatedly as long as the condition remains true. Loop can be while loop or for loop. The value of determine whether the body of the loop is to be executed. The value of condition. The value of condition or the value of loop control variable determines whether the body of the loop is to be executed or not. Fourth, the statement is used when you have to evaluate only one condition. अगर आपको एक ही condition evaluate करना है तो आपने if statement का use करना चाहिए. Fifth, the is the function in Python that create a sequence of number. Range. Range is the function which create the sequence of number. 6, contains a set of statements that are required to iterate or repeat. Answer is loop. So first answer is true. Second, loop. Third, loop control variable or condition. Fourth, if statement. Fifth, range. 6, loop. State true or false. The if else if statement provide a compact way to perform multiple tests on a condition. Answer is true. The conditional expression of the while loop is used to initialize the loop control variable. False. Conditional expression condition के लिए use होता है, initialization के लिए नहीं. An infinite loop is a loop that has no terminating condition. True. It is not mandatory to have an else block with the loop block. True. Loop के साथ else लिखना optional होता है. Looping statement execute a set of statement repeatedly until the condition is true. It is right. जब तक condition true है वो repeat होते रहेगा. Condition false होने के बाद वो रुक जाएगा. 6, an if statement inside another if statement is called nested if. बिल्कुल बराबर. एक if statement के अंदर कर दूसरा if statement आप लिखते हैं. That is called as a nested if. Select the correct option. Is a step-by-step procedure to write a program. Answer is algorithm. What will be the output of falling? The output of falling is 0 to 4. 0, 1, 2, 3, 4. So answer is C. It is mandatory in Python to indent the statement. Answer is indent. Indent यानी जब हम space छोड़ते हैं किसी भी statement के before, that is called indent. What will be the output of falling code? I in range 55 to 50 minus 2 print I end. So answer will be 55, 53, 52, 51. So answer is A. Sorry, it is minus 2. So 55, 53 and 51. 55, 53, 51. So answer should be C because it is minus 2. So 55 से 53 होगा, 53 से 51 होगा और वो रुक जाएगा. आंसर इज सी. नेक्स्ट, द फंक्शन इज यूज विद द फॉर लूप. रेंज. आंसर इज रेंज फंक्शन इज यूज विद फॉर लूप. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? आई की जो इनिशियल वैल्यू है वो 1 है, लेस देन और इक्वल टू 10 यानी वो 10 तक जाएगा. सो आई की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है और 10 पे खत्म हो रही, और वो आई की वैल्यू सम में ऐड हो रही. इट मीन्स 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर है उनकी सम होंगी. 1 + 2 + 3 + डैश डैश + 10. सो आंसर इज 55. इफ यू ट्राई टू डू इट यूजिंग कैलकुलेटर, अगर आप 1 से लेके 10 नंबर तक पूरी आई की सम नाम के वेरिएबल में ऐड करेंगे, सो आंसर विल बी 55. आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस. नेम द कंडीशनल स्टेटमेंट अवेलेबल इन पाइथन. पहला है सिंपल इफ, दूसरा है इफ एल्स, थर्ड इज इफ ELIF else, और चौथा है nested if. There are 4 conditional statement in Python. Simple if else, if
dash dash elif dash dash else nested if. Define a flowchart. Diagrammatic representation of a program is called flowchart. Name the iterative statements. There are two iterative statements, while loop, for loop. What do you mean by control variable? जो वेरिएबल आप लूप में यूज करते ना, जैसे for, जैसे अगर आप लिखते हो for I in range 5, तो ये जो I वेरिएबल है ये हो गया लूप कंट्रोल वेरिएबल. नाम कुछ भी चलेगा, इट्स नॉट कंपल्सरी टू टेक द नेम I. व्हाट डू यू मीन बाय, सॉरी, व्हाट इज नेस्टेड इफ? अगर आप एक इफ के अंदर में इंडेंट देते हुए दूसरा इफ लिखते हो, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ. राइट द यूज ऑफ एल्स ब्लॉक इन लूप. जब लूप टर्मिनेट हो जाता है तो एल्स ब्लॉक में लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है. टर्मिनेट यानी एंड. व्हेन द लूप एंड, देन द स्टेटमेंट गिवन इन द एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट, और वो स्टेटमेंट प्रिंट होने से अपने को समझ में आ जाता है कि लूप एंड हो चुका है नॉर्मली. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज लूप? लूप का काम होता है स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना. जैसे मुझे 7 का टेबल प्रिंट करना है, 1 to 10 रिपीटेशन करना है, तो मैं लूप का यूज करूंगा. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. तो मैं लूप का एक एग्जाम्पल आपको देता हूं. सी, फॉर आई इन रेंज, मैं 7 से शुरू करना चाहता हूँ, 71 है तो मैं 70 पे एंड करना चाहता हूँ. एवरी टाइम आई वुड लाइक टू इंक्रीज द वैल्यू बाय 7. तो ये इंडेंट दे रहा हूँ एंड प्रिंट आई. सो यहाँ पे प्रिंट आई स्टेटमेंट है 10 टाइम्स रिपीट होगा, 7 से लेके 70 तक. पहला 7 स्टार्टिंग पॉइंट है, दूसरा 71 है तो वहां पे 70 पे बंद हो जाएगा, और तीसरा 7 स्टेप वैल्यू यानी इंक्रीमेंट वैल्यू है. सो दिस फॉर लूप विल प्रिंट द टेबल ऑफ 7 फ्रॉम 7 to 70. So this is an example. State the use of if statement. Very simple. If number greater than 0 colon indent print positive, else indent print negative. This is the example of if statement. Describe the if elif else ladder statement. So I will extend this example in case of third one. Here you can check multiple conditions. If number greater than 0 positive, elif number less than 0 negative, else colon print 0. So if you want to check the multiple condition, if elif else ladder is used, what is the use of if else statement? तो हम एक काम करेंगे, ये जो एग्जाम्पल है आपका पहला एग्जाम्पल, यही इफ एल्स का एग्जाम्पल है, बट अगर उसको इफ में करना है ना तो ये एल्स पार्ट नहीं चाहिए, ऐसा आंसर चाहिए था उसका. और ये इफ एल्स का एग्जाम्पल ये रहा फिर. ठीक है. सो मैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. डिस्क्राइब द रेंज फंक्शन इन फॉर लूप. फॉर लूप के अंदर रेंज फंक्शन को एक्सप्लेन करना था. सो रेंज फंक्शन का यूज ये दिया ही है यहाँ पे. ये जो यूज है ये वाला यही अप्लीकेबल है यहाँ पे. डिफाइन द इनफाइनाइट लूप. जो लूप एंड नहीं होता, टर्मिनेट नहीं होता, जिसमें टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं रहती, एंड नहीं होता, दैट इज इनफाइनाइट लूप. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर्स. Let's move to the unit number 5, that is string manipulation. Now what is a string? String is a alphabetic value. जैसे School of Scholar Yavatmal is a string. String can be written in either single quote or double quote. So this is Satya Nadella. This is a string. The first position of the string start with 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. So ये जो position दिख रहे हैं आपको, जो 0 से शुरू होता है हमेशा, उसको बोलते हैं इंडेक्स वैल्यूज. ये इंडेक्स वैल्यूज आप रिवर्स भी लिख सकते हैं. रिवर्स अगर इंडेक्स वैल्यू आपको लिखना है तो ये जो सबसे लास्ट वाली इंडेक्स वैल्यू है ये रहे. देखो स्टार्टिंग से इधर जाना है तो ये 0 ऑनवर्ड शुरू होता है, और ऐसा निगेटिव इंडेक्सिंग करना है तो ये -1, -2, -3,
-4 एंड सो ऑन। ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों दिया है। पॉजिटिव जाना है तो ये पाइथन स्पेस वर्ल्ड 0 to 11 जाएगा, और निगेटिव आना है तो -1 to -12 आएगा। वी हैव टेकन दिस एग्जांपल इज इन कंप्यूटर लैब, राइट। नाउ प्रिंट, अगर ये आपका पाइथन वर्ल्ड स्ट्रिंग है और आपने बोला है प्रिंट A0, तो यहाँ 0 नंबर का प्रिंट हो जाएगा। इट मीन्स P विल प्रिंट। यहाँ आउटपुट आना चाहिए P। यहाँ आपका आउटपुट आ जाएगा P, ओनली P विल प्रिंट, क्योंकि 0 पोजीशन पे सिर्फ P है। दूसरा है 3 पोजीशन का कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए H। फिर है 5 पोजीशन का कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए N। देन है 7 पोजीशन का कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए W। देन है 10 पोजीशन का कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए L। देन है प्रिंट -8 पे है O शुड बी प्रिंट। -1 पे है D, सो D शुड बी प्रिंट। -12 पे कोई है ही नहीं, तो वो अनडिफाइंड रहेगा, ठीक है। तो दिस शुड बी द आंसर। स्ट्रिंग ऑपरेटर, प्लस इज अ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। इससे दो स्ट्रिंग ज्वाइन होती है, जैसे किप्स प्लस लर्निंग, दोनों ज्वाइन होके किप्स लर्निंग। कॉन्केटिनेशन यानी दो स्ट्रिंग वैल्यू को ज्वाइन करना। रिप्लीकेशन, जैसे मैंने किप्स मल्टीप्लाई बाय यानी *4 लिखा, तो किप्स 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 4 बार प्रिंट होगा, 4 बार रिप्लीकेट होगा। नाउ मेंबरशिप ऑपरेटर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देयर आर 2 मेंबरशिप ऑपरेटर, इन और नॉट इन। जैसे यहाँ एक टेक्स्ट है प्रोग्रामिंग इज फन, और मैं चेक करना चाहता हूँ, और ये प्रोग्रामिंग इज फन क्या है, ये टेक्स्ट है। मैं चेक करना चाहता हूँ कि फन इन टेक्स्ट में अवेलेबल है क्या। तो ये फन जो है ये टेक्स्ट में लास्ट में अवेलेबल है, सो आंसर इज ट्रू। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ पाइथन इन टेक्स्ट, तो पाइथन अवेलेबल है क्या वो ग्रीन वाले टेक्स्ट में, नहीं, सो आंसर इज फॉल्स। फन अवेलेबल है टेक्स्ट में, ट्रू। पाइथन अवेलेबल नहीं है, फॉल्स। ठीक है। अब हम नॉट इन का एग्जाम्पल देखेंगे। प्रोग्रामिंग इज फन, जावा नॉट इन टेक्स्ट, तो प्रोग्रामिंग इज फन में जावा नहीं है, तो नॉट इन का आंसर आता है ट्रू। फन नॉट इन टेक्स्ट, फन अवेलेबल है लेकिन हम नहीं बोल रहे, सो आंसर इज फॉल्स। तो बेसिकली इन और नॉट इन एक दूसरे के अपोजिट है। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ वॉवेल इन अ स्ट्रिंग, ये प्रोग्राम हमने किया था कंप्यूटर लैब में, इफ यू रिमेंबर। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट ली है, काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 रखी है। वो स्ट्रिंग वैल्यू में हर कैरेक्टर को हम इन ऑपरेटर की मदद से AEIOU से मैच करके देख रहे। जब जब AEIOU से मैच होंगे हम काउंटर की वैल्यू 1 से बढ़ा रहे, और उस काउंटर की वैल्यू को हम डिस्प्ले करें। दिस वी हैव डन इन कंप्यूटर लैब। सो स्ट्रिंग में से एक एक अल्फाबेट हम VOL को असाइन करके उसको AEIOU के साथ मैच करके देख रहे। मैच हुआ तो काउंटर बढ़ा रहे, नहीं तो नहीं। स्लाइस ऑपरेटर, स्लाइस ऑपरेटर स्ट्रिंग के रेंज ऑफ वैल्यूज को प्रिंट करने में काम आता है, ठीक है। लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल। जैसे स्ट्रिंग है पाइथन वर्ल्ड, अगर मैंने, और स्ट्रिंग का नाम क्या है, वेरिएबल का नाम A। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में 1:3 लिखता हूं, तो 1 और 2 नंबर का कैरेक्टर प्रिंट होगा। 1 नंबर यानी Y, आपको 1 नंबर यानी P लग रहा होगा तो वो गलत है, P इज एट इंडेक्स 0। सो 1:3 का मतलब होता है 1 से लेके 2 तक। नाउ 0:10:2 का मतलब होता है फ्रॉम 0 to 9, और हर बार वैल्यू 2 से बढ़ेगी, यानी 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद एंड। आप बोलोगे 8 के बाद 10 क्यों नहीं सर, क्योंकि 10 दिया है तो 9 पे रुकना पड़ता है। :7 यानी बिगिनिंग टू 6, 3 यानी 3 से लेके एंड तक, सिर्फ कोलन यानी होल स्ट्रिंग, ::1 यानी रिवर्स स्ट्रिंग। दिस हैज बीन डन इन कंप्यूटर लैब, दैट टू प्रैक्टिकली। सो ऐसा पाइथन, प्रोग्रामिंग इन पाइथन के आउटपुट्स आपको लिखना, इट मे कम इन एग्जामिनेशन। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर, यहाँ नेम की वैल्यू है आर्यन और एज की वैल्यू है 23। यहाँ पे नेम की वैल्यू प्रिंट होगी और यहाँ पे एज की वैल्यू प्रिंट होगी। कैरेक्टर प्रिंट करना है सिंगल कैरेक्टर, तो %C लिखना होता है।
मल्टीपल कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो %s, इंटीजर प्रिंट करना है तो %i या d, ऑक्टल इंटीजर प्रिंट करना है तो o, हेक्साडेसिमल करना है तो x, कैपिटल हेक्साडेसिमल प्रिंट करना है तो कैपिटल X, एक्सपोनेंशियल नोटेशन करना है तो ई, और डेसिमल पॉइंट यानी 3.14, 9.81 ऐसे प्रिंट करना है तो फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर्स, %f। एस्केप सीक्वेंसेस, तो इसमें से इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है, अगर आपको न्यू लाइन पे जाना है, एक लाइन से दूसरे लाइन पे जाना है तो आपको ये यूज करना पड़ता है /n। ये भी हमने प्रैक्टिकली किया है सब। पाइथन प्रोग्रामिंग, इसकी मैं एलियन लेंथ कैलकुलेट करूँ तो आंसर आएगा 18, क्योंकि पाइथन और प्रोग्रामिंग में 17 अल्फाबेट है और बीच में एक स्पेस है, तो टोटल हो गया 18। एलियन फॉर लेंथ, लेंथ का मतलब होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग ब्लैंक स्पेसेस। नेक्स्ट इज लोअर। नाउ यू कैन सी ए, ए इज अ स्ट्रिंग जिसकी वैल्यू है पाइथन प्रोग्रामिंग। अगर मैं ए डॉट लोअर करता हूं तो ये कैपिटल का कन्वर्शन स्मॉल लेटर में हो जाएगा। पाइथन प्रोग्रामिंग जो कैपिटल था दैट विल बी कन्वर्टेड टू स्मॉल लेटर्स। यू कैन सी इन दिस ब्लू कलर इट इज कन्वर्टेड टू स्मॉल कलर। अपर, नाउ if I use the word a dot upper or string dot upper, it will be converted to capital. Upper function works in opposite. A equal to Python programming is in smaller letter. If you do a dot upper and print it, it will be converted to capital letters. Replace. Replace function is used to replace the old string by new. For example, original value is a scream, you scream, we all scream for ice cream. This string is named A. If you do a dot replace scream with shout, so what will happen? The word scream in the statement will be replaced by shout. So it will be I shout, you shout, we all shout for ice cream. So here some of the output you need to find. Length, programming is fun. तो programming is fun में कितने अल्फाबेट से आपको गिनना है इंक्लूडिंग ब्लैंक स्पेसेस। प्रोग्रामिंग इज फन डॉट अपर, ये पूरा कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोग्रामिंग इज फन डॉट लोअर, पूरे लेटर स्मॉल अल्फाबेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रोग्रामिंग इज फन रिप्लेस फन विथ इंटरेस्टिंग, तो प्रोग्रामिंग इज फन के जगह प्रोग्रामिंग इज इंटरेस्टिंग हो जाएगा। स्ट्रिप फंक्शन से ब्लैंक स्पेसेस निकलते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ अननेसेसरी ब्लैंक स्पेसेस थे, जैसे ही आप ये ई डॉट स्ट्रिप कर दोगे ये अनवांटेड ब्लैंक स्पेसेस निकल जाएंगे। आप देखो यहाँ से ब्लैंक स्पेस निकल गए, ठीक है। सो स्ट्रिप इज यूज टू रिमूव द ब्लैंक स्पेसेस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड बोथ। लेकिन आप आर स्ट्रिप यूज करते हो तो सिर्फ राइट साइड के ब्लैंक स्पेसेस निकलेंगे, एल स्ट्रिप यूज किया तो सिर्फ लेफ्ट साइड के ब्लैंक स्पेसेस निकलेंगे। इज अपर, देखो अपर लोअर अलग है, इज अपर इज लोअर अलग है। जैसे कि ये स्ट्रिंग कैपिटल में है और मैं बोल रहा हूं कि एस टी डॉट इज अपर, तो आंसर ट्रू आया। वाई आंसर ट्रू? बिकॉज इट इज इन कैपिटल। अगर मैं इज लोअर बोलता तो आंसर फॉल्स आ जाता था। उसी तरह इज लोअर काम करता है। ये स्ट्रिंग लोअर में थी, मैं इज लोअर बोल रहा हूं तो ट्रू आया। ये अगर कैपिटल होती और मैं इज लोअर बोलता तो फॉल्स आता था। इज डिजिट, यहाँ आंसर ट्रू इसलिए आया क्योंकि इसमें डिजिट्स है। इज अल्फा, यहाँ आंसर ट्रू इसलिए आया क्योंकि पाइथन में अल्फाबेट्स है। सो इज अपर चेक करता है क्या कैपिटल है, इज लोअर इज चेकिंग वेदर इट इज स्मॉलर, इज डिजिट इज चेकिंग इफ इट इज डिजिट, इज अल्फा इज चेकिंग इफ इट इज अल्फाबेट्स। इज एल में दोनों अलाउड होते हैं, अल्फाबेट और नंबर। है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। फाइंड, जैसे एक स्ट्रिंग है, दिस इज अ गुड, हम क्या कर रहे, फाइंड करना चाहते। काय में? एसटी में। एसटी क्या है? दिस इज अ गुड। उसमें क्या फाइंड करना चाहते? गुड। तो गुड में का जी कौन से पोजीशन पे है? जी है 8वें पोजीशन पे, तो आंसर इज 8। दिस इज गुड इज अ एसटी स्ट्रिंग, उसमें हम गुड को फाइंड करना चाहते हैं, उसमें गुड के जी के पोजीशन को, आंसर इज 8।
तो ये कुछ आपको एग्जाम्पल्स है, आप इसको W3 स्कूल में ऐसा टाइप करिए और आउटपुट देखिए क्या आता है। वैल्यू इज एल नम, पहले का आंसर ट्रू आना चाहिए क्योंकि अल्फाबेट नंबर दोनों है। वैल्यू इज अपर, ये भी ट्रू आना चाहिए क्योंकि कैपिटल है। थर्ड केस में आंसर फॉल्स आना चाहिए क्योंकि उन्होंने अल्फा बोला है और ये डिजिट है। वैल्यू इज डिजिट, फोर्थ का भी आंसर फॉल्स आ सकता है। ठीक है। डिलीटिंग अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कैसे डिलीट करते हैं मैं बताता हूँ। ये एक न्यू स्ट्रिंग थी, आपने लिखा डेल न्यू स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग डिलीट हो जाएगी। तो डेल और स्ट्रिंग का नाम, इससे दी गई स्ट्रिंग डिलीट होती है। सो ये यूनिट यहाँ पे खत्म होता है। लेट्स सी टू द एक्सरसाइज। अ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर यूज टू रिप्रेजेंट डेटा। पहले का आंसर है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ values and each data value in a string is called an element. Third, the function is used to find the length of string len. Fourth, the index value of the first element is 0. Fifth, blank space right side से निकालना है तो r strip. Now let's come to the true false. Each element of the string is identified with unique index value. True, और वो index शुरू होता है 0 से. The strip function check if all the element of string are numeric. False. Strip का काम blank space remove करना होता है. बैकस्लैश n is a line feed ताकि न्यू लाइन पे जाया जा सके. True. Slice operator is used to delete the character. False. The replace function is used to replace a complete string with another string. False. हम complete string ने string का एक part replace करते हैं. Select the correct answer. रिप्लीकेशन ऑपरेटर का आंसर है बी, यानी स्टार. अपर टू लोअर कन्वर्ट करने के लिए लोअर नाम का फंक्शन होता है, सो आंसर इज डी. थर्ड, थर्ड का आंसर है सी, सॉरी, आंसर है बी. आंसर है बी, दैट इज फाइंड. Next is answer find. So with the help of find, we can print the index of the sum string. Next is which function remove the additional spaces from left or right of the string. Answer is strip B. So first answer is B, second is D, third is B, fourth is B, fifth A is alpha. Answer in one word or sentence. Name the function used to convert the character of string to uppercase. Function का नाम है upper. Next, what do you mean by alphanumeric value? Which having the collection of alphabet and number both. Third, what will be the output of is alpha function if encounters only digit? Digit है और आप is alpha बोल रहे, तो आंसर आएगा false. Fourth, what is the use of L strip function? Remove blank spaces from लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग. लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग से ब्लैंक स्पेसेस रिमूव करेंगे अननेसेसरी वाले. राइट द यूज ऑफ फाइंड फंक्शन टू फाइंड द पोजीशन ऑफ सब स्ट्रिंग. स्ट्रिंग के एक आधा हिस्सा, जैसे प्रोग्रामिंग इज फन, तो प्रोग्रामिंग इज फन में आपको आईएनजी इंग की पोजीशन पता करना है, तो वो आप फाइंड से कर सकते हैं. दिस इज एन एग्जांपल. ई, व्हाट इज द यूज ऑफ इज एलनम फंक्शन? ये चेक करता है कि दिए गए स्ट्रिंग में अल्फाबेट और नंबर्स है क्या. ए एल अल्फाबेट, नम नंबर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड इज लोअर? लेट मी टेल यू. जैसे कि ये कैपिटल है, डॉट लोअर, तो इसका आउटपुट आएगा, ये स्मॉल में हो जाएगा.
और लोअर का काम क्या है, अगर ये कैपिटल में है और मैं बोल रहा हूँ इज लोअर, तो ये लोअर में कन्वर्ट नहीं होगा, इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स आएगा, क्योंकि वो लोअर में नहीं है, वो अपर में है और आप पूछ रहे इज लोअर, तो आंसर इज फॉल्स। ये डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन यल स्ट्रिप एंड आर स्ट्रिप। यल स्ट्रिप स्ट्रिंग के लेफ्ट से ब्लैंक स्पेसेस रिमूव करता है, आर स्ट्रिंग राइट से। व्हाट इज द यूज ऑफ रिप्लेस फंक्शन? रिप्लेस फंक्शन से आप स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते। व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस? एक एग्जांपल देता हूँ, एस्केप सीक्वेंस का बैकस्लैश एन, जैसे मैंने लिखा है SOS/YTL, तो आउटपुट क्या आएगा, पहले SOS दिखेगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे YTL दिखेगा। YTL नेक्स्ट लाइन पे क्यों गया? ड्यू टू बैकस्लैश एन, एंड दिस बैकस्लैश एन इज एन एग्जांपल ऑफ एस्केप सीक्वेंस। हाउ कैन यू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग इंडेक्स? जैसे SOS का मुझे, सपोज YTL का मुझे Y देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग का नाम 0 पोजिशन, तो आंसर आएगा Y। मुझे T देखना है तो स्ट्रिंग 1, अब आएगा T। मुझे यल देखना है तो स्ट्रिंग 2, अब आएगा यल, एंड सो ऑन। राइट द आउटपुट। पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेंथ ऑफ ए, आपको पूरे नंबर ऑफ अल्फाबेट गिनना है इंक्लूडिंग ब्लैंक स्पेसेस। पाइथन प्रोग्रामिंग लोअर, ये पूरा स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। लर्निंग इज अ फन, ए फाइंड लर्निंग, आंसर 0 आएगा क्योंकि लर्निंग में का यल 0 पोजिशन पे है। पाइथन प्रोग्रामिंग ए स्ट्रिप, पाइथन प्रोग्रामिंग में राइट साइड से ब्लैंक स्पेसेस निकल जाए, सॉरी, राइट साइड से प्रोग्रामिंग निकल जाएगा, सिर्फ पाइथन आंसर बचेगा। हेलो वर्ल्ड 0 to 3, तो 0 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर के अल्फाबेट प्रिंट होंगे। किप्स लर्निंग कैपिटल है तो वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। पाइथन प्रोग्रामिंग ए डॉट लेंथ, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स प्रिंट होंगे, सॉरी इसमें करेक्ट करके लिखना है, तो ए डॉट लेंथ लिखना गलत है, इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी लाइक दिस, प्रिंट एलियन ब्रैकेट में ए। सो जो इन्होंने दिया ए डॉट लेंथ, दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, दिस इज गुड, यहाँ पे भी गलत है, यहाँ पे चाहिए था प्रिंट, स्ट्रिंग का नाम ST नहीं है, स्ट्रिंग का नाम है ए, तो यहाँ पे चाहिए था ए डॉट फाइंड ब्रैकेट में गुड। सो ST डॉट फाइंड की जगह ए डॉट फाइंड चाहिए था। नेक्स्ट, यहाँ पे कंपेयर करना है तो इक्वल टू साइन 2 बार चाहिए था। ओके, नेक्स्ट, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग, वेरी सिंपल, सिंगल लाइन का है प्रोग्राम। प्रिंट SOS is a first string plus YTL is a second string. Output will be SOS YTL, हो गया प्रोग्राम। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव पंक्चुएशन मार्क्स फ्रॉम स्ट्रिंग, इसको हम स्किप कर देते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू गेट अ स्ट्रिंग यूजिंग फर्स्ट 2 and last 2 character, this can also be skipped. So here lesson number 5 is over. So here chapter number 5 is over. Let's move to the chapter number 6. List in Python. This also has been completed in computer lab with practical. Now we will revise it. Now list always written in a square bracket. So start की पोजीशन 0 है, मिडल की पोजीशन 1 है, एंड की पोजीशन 2 है। दीज आर कॉल्ड इंडेक्सेस। एडवांटेजेस ऑफ लिस्ट, ये डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है, लिस्ट फ्लेक्सिबल है, लिस्ट के वैल्यू अपडेट चेंज किए जा सकते हैं, लिस्ट में एलिमेंट सर्च करना आसान है, बहुत सारे एडवांटेजेस है। लिस्ट कैसे डिफाइन होती है देखिए,
जैसे कि सिटी लिस्ट इज अ लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, दिल्ली 0 पोजीशन, मुंबई 1 पोजीशन, चेन्नई 2 पोजीशन, कोलकाता 3 पोजीशन. Printing list atom print is very simple task. See here, city list is a list with 4 atoms. Print city list, so all these 4 will print. This is the output. Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata. It will print inside a square bracket. But if you don't want to print all the 4 elements, if you do print city list, it will print all 4 elements in square bracket. But if you want to print selected, if you are doing city list 1, city list 2, so Mumbai and Chennai will print. Delhi is at 0 position. Next, printing all the list item individually using loops. Printing all list item individually using loop. सिटी लिस्ट में 4 सिटी है, मैंने वेरिएबल का नाम फॉर लूप में x लिया है, x की जगह y भी चलेगा. इन ये सिटी लिस्ट यहाँ दिया है प्रिंट x, तो क्या होगा, ये चारों सिटी प्रिंट हो जाएंगे एक के नीचे एक यूजिंग फॉर लूप. अब अपने प्रिंट करने से पहले अगर स्टार लगाया तो आउटपुट में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आता. यू कैन चेक द आउटपुट. ये स्टार निकाला तो आउटपुट में स्क्वायर ब्रैकेट आता. दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन कंप्यूटर लैब. सिटी 0 प्रिंट करोगे तो दिल्ली, सिटी 1 प्रिंट करोगे तो मुंबई, सिटी 2 करोगे तो चेन्नई, सिटी 3 आगे जाके करोगे तो कोलकाता. डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट. अगर आप ब्रैकेट में कुछ नहीं देते हो तो दिट इज एम्प्टी लिस्ट. अपेंड से आप लिस्ट में एलिमेंट ऐड कर सकते हो. पहले समर ऐड होगा, फिर स्प्रिंग, फिर विंटर. अपेंड इज अ फंक्शन विच इज यूज टू ऐड द एलिमेंट इन द लिस्ट. अपेंड से एलिमेंट जो ऐड होता है वो लिस्ट के आखिरी में ऐड होता है. नेस्टेड लिस्ट, ये एक लिस्ट है और ये लिस्ट के अंदर ये एक बड़ी लिस्ट है और ये लिस्ट के अंदर आपने ये 2 सब लिस्ट लिए हैं लिस्ट के अंदर लिस्ट. दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट. लिस्ट में यूज होने वाले वेरियस ऑपरेशंस या फंक्शन, लेट्स सी देम वन बाय वन. यलियन, अब यहाँ पे दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता 4 वैल्यूज है. अगर मैं यलियन और ब्रैकेट में लिस्ट का नाम लिखूं तो आंसर आना चाहिए 4, बिकॉज देर आर 4 एलिमेंट इन द लिस्ट. इंडेक्स, आपको ब्रैकेट में दिए हुए एलिमेंट की पोजीशन पता चलती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहाँ है, मैं इंडेक्स चेक करना चाहता हूँ मुंबई का, तो आंसर शुड बी 1. दिल्ली का 0 है, मुंबई का 1. अपेंड, अपेंड से एलिमेंट लास्ट में ऐड होता है. ओरिजिनल लिस्ट में था दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता. अब आपने अपेंड किया है चंडीगढ़, तो वो कोलकाता के बाद ऐड होगा. यानी अपेंड से जो एलिमेंट ऐड होता है दैट इज एट द लास्ट ऑफ द स्ट्रिंग. इंसर्ट, इंसर्ट और अपेंड में क्या डिफरेंस है? अपेंड से एलिमेंट लास्ट में ऐड होता है, इंसर्ट में आप जहां बोलोगे वहां होता है. जैसे मैंने यहाँ पे बोला है कि आपको दिल्ली ऐड करना है 1 पोजीशन पे, तो 1 पोजीशन पे दिल्ली ऐड हो जाएगा. दैट इज बिफोर कोलकाता एंड आफ्टर चेन्नई. अपेंड से लास्ट ऐड होता है, इंसर्ट से जहां बोलोगे वहां ऐड होता है. नेक्स्ट है एक्सटेंड. एक्सटेंड से आप मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो एट द एंड. ये एक्सटेंड, यू कैन ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट. तो अपेंड में लास्ट ऐड होता है, इंसर्ट में जहां बोलोगे वहां ऐड होता है, एक्सटेंड से मल्टीपल वैल्यूज कैन बी एडेड एट द लास्ट. रिमूव, अब आपने बोला है रिमूव मुंबई, तो ये लिस्ट में से मुंबई रिमूव हो जाएगा. पॉप, अगर आप बोलते हो पॉप तो लास्ट एलिमेंट पॉप होता है, दैट इज कोलकाता. आप रिमूव मुंबई बोलोगे तो सिर्फ मुंबई रिमूव होगा, आप पॉप बोलोगे तो लास्ट एलिमेंट रिमूव होगा. सो रिमूव से जो बोलोगे वो रिमूव होगा, पॉप से आइदर लास्ट पॉप होगा या आप पोजीशन दो तो उस पोजीशन का होगा. अगर आपने पॉप 1 बोला तो मुंबई होता और सिर्फ पॉप बोला तो कोलकाता होता. यानी रिमूव से नाम बताना पड़ता है. पॉप के 2 ऑप्शन है, ओनली पॉप लिखा तो लास्ट डिलीट होता और पॉप के साथ पोजीशन लिखी तो दिए गए पोजीशन का एलिमेंट डिलीट होता. आपने यहाँ पे पॉप 1 बोला तो मुंबई डिलीट हुआ, या सिर्फ पॉप बोला तो लास्ट एलिमेंट कोलकाता डिलीट हुआ. ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल से आपको करना है. लिस्ट डिवाइस पॉप 0, जब आपने पॉप 0 बोला है तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 डिलीट होगा. रिमूव गूगल पिक्सल 3, गूगल पिक्सल 3 रिमूव होगा.
डेल लिस्ट डिवाइस, पूरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी। डेल कीवर्ड से पूरी लिस्ट डिलीट होती है, और इंडेक्स दिया तो स्पेसिफिक इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट होता है। आई एम रिपीटेडली टेलिंग दिस हैज बीन ऑलरेडी डन इन लैब। पॉप, जो एलिमेंट बोलोगे उस पोजीशन का एलिमेंट, या पोजीशन नहीं बोलोगे तो लास्ट एलिमेंट रिमूव होता है। डिलीट से पूरी लिस्ट या कोई एलिमेंट डिलीट किया जा सकता है। रिमूव से जो आप एलिमेंट का नाम दोगे वो एलिमेंट रिमूव होगा। क्लियर से पूरी लिस्ट खाली हो जाएगी। रिवर्स से लिस्ट उल्टी प्रिंट हो जाएगी, यानी 10 20 30 है तो 30 20 10 हो जाएगा। सॉर्टिंग, SORT, सॉर्ट नाम का फंक्शन है, इससे डेटा सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो लिस्ट सॉर्ट रिवर्स इक्वल टू ट्रू। ओनली सॉर्ट लिखा तो असेंडिंग ऑर्डर, सॉर्ट में रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखा तो डिसेंडिंग ऑर्डर। So here this chapter is completed. Let's move to the exercise. Fill in the blanks. पहले का आंसर है म्यूटेबल। लिस्ट म्यूटेबल है, यानी उसके वैल्यू चेंज हो सकते हैं। सेकंड, अगर स्क्वायर ब्रैकेट में कोई वैल्यू नहीं है तो दैट इज कॉल्ड एम्प्टी लिस्ट। थर्ड, एलियन से आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चलते हैं। फोर्थ, डिलीट करना है तो पॉप फंक्शन यूज करना पड़ेगा। सिक्स, अरेंज करना असेंडिंग या डिसेंडिंग इज कॉल्ड सॉर्टिंग। ट्रू फॉल्स, पहला ट्रू, दूसरा भी ट्रू, थर्ड ट्रू, चौथा भी ट्रू, पांचवा फॉल्स है। पॉप से फर्स्ट एलिमेंट नहीं लास्ट एलिमेंट डिलीट होता है, तो पहले चार ट्रू है, पांचवा फॉल्स। और सॉर्ट से असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों पॉसिबल है। रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखा तो डिसेंडिंग, वो नहीं लिखा तो असेंडिंग। तो आंसर इज ट्रू। सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। इंडेक्स फंक्शन से हमें जो भी आप नाम देते हो ना, उसके फर्स्ट ऑकरेंस का वैल्यू मिलता है। जैसे मान के चलो किसी लाइन में इंडिया इंडिया दो बार आया, और आपको इंडिया का इंडेक्स देखना है, तो पहली बार फर्स्ट इंडेक्स ऑफ इंडिया पता चलेगा, दूसरे वाले का नहीं। सो आंसर इज ए। डिजायर्ड पोजीशन पे किसी एलिमेंट को ऐड करना है तो इंसर्ट नाम का फंक्शन यूज होता है। आंसर इज बी। स्पेसिफिक एलिमेंट रिमूव करना है तो रिमूव नाम का फंक्शन है। आंसर इज बी। एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट तैयार करते हैं तो नेस्टेड लिस्ट होती है। आंसर इज सी। एम्प्टी लिस्ट में एलिमेंट ऐड करना है तो अपेंड इज अ गुड ऑप्शन। आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस। नेम द फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू अरेंज द स्कोर फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। सॉर्ट, SORT, sort. What is the sequence of object arranged in an organized form called? Organized form में sequence रहता है तो that is called as a list. Which function is used to add multiple element? Extend, EXTEND. Name the function that can be used to print all the items in a list. Print function, PRINT, print. Answer the following question. What is the significance of using list? List is used to organize the value in a systematic form which can be easily updated. How can you define a list in Python? List is a collection of same or different type of element which is presented in a square bracket, and it is very easy to change the elements in the list. What is nested list? List inside another list. एक list के अंदर दूसरी list लिख दी तो that is nested list. What is an empty list? List के सामने के square bracket अगर empty रहे तो that is empty list. What is the significance of length function? LEN. LEN से हमें number of elements पता चलता है। जैसे कि चेन्नई, मुंबई, पुणे, कोलकाता, चार वैल्यू है तो लेंथ का आंसर आएगा 4। डिफरेंस बिटवीन इंसर्ट एंड एक्सटेंड। इंसर्ट में एक एलिमेंट ऐड होता है स्पेसिफाइड पोजीशन पे। एक्सटेंड से मल्टीपल एलिमेंट ऐड होते हैं लिस्ट के एंड में। डिफरेंस बिटवीन पॉप एंड रिमूव। पॉप से आपको इंडेक्स बताना पड़ता है, उस इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट होता है।
या आपने इंडेक्स नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट डिलीट होता है, जबकि रिमूव में आपको पोजीशन नहीं, एलिमेंट का नाम बताना पड़ता है, वो एलिमेंट रिमूव होता है। एक्टिविटी जोन, यहाँ पे लेंथ का आंसर आना चाहिए, ये गलत है। रीराइट द स्टेटमेंट, यहाँ लेंथ ये गलत तरीके से लिखा गया है। इट शुड बी लाइक दिस, प्रिंट len st। ठीक है, नेक्स्ट, सिटी लिस्ट 1 प्लस सिटी लिस्ट 2, तो आंसर शुड बी मुंबई चेन्नई, दो ज्वाइन हो जाएंगे 1 और 2। क्लियर, एम्प्टी लिस्ट प्रिंट होगी क्योंकि आपने क्लियर का यूज किया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट 2 3 के आंसर है। नेक्स्ट, राइट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड सेगमेंट। कलर में 3 वैल्यू है, उसमें आपने 3 वैल्यू और एक्सटेंड कर दिए तो टोटल वैल्यूज हो गए 6। तो आउटपुट में 6 वैल्यूज प्रिंट होंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, रेड ग्रीन ब्लू येलो ऑरेंज ब्लैक, टोटल 6 वैल्यूज विल बी प्रिंटेड। फ्रूट्स, फ्रूट्स में 3 वैल्यू है। 1 नंबर पे आप वाटरमेलन को इंक्लूड कर रहे, तो अब जब प्रिंट करेंगे तब रहेगा 0 पे एप्पल, 1 पे वाटरमेलन, 2 पे ऑरेंज, 3 पे ग्रेप्स, तो 4 वैल्यूज हो जाएंगे। थर्ड, पॉप 2, पॉप 2 से यूरोप रिमूव हो जाएगा। यूरोप पॉप 2 से क्या होगा, पॉप 2 से यूरोप रिमूव हो जाएगा। सो एशिया अंटार्कटिका अफ्रीका प्रिंट होगा। सॉर्ट से ही अल्फाबेटिकली स्टार्ट सॉर्ट होंगे, तो बी पहले से आता है तो बीजिंग पहले दिखेगा। ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये चारों वैल्यूज दिखेंगे। सो हियर इट इज कंप्लीटेड ऑल द लेसन्स विथ रिविजन। वर्कशीट नंबर 3 देखते हैं। द फंक्शन विल रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आर इन लोअर केस, इज लोअर इज द आंसर। पाइथन प्रोवाइड insert function। अब एलिमेंट, लिस्ट एलिमेंट, वो नंबर भी चलेगा, अल्फाबेट भी चलेगा, सिंबल भी चलेगा। प्लस से मल्टीपल स्ट्रिंग ज्वाइन होती है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग सेट ऑफ डेटा या लिस्ट सेट ऑफ डेटा होता है। लेंथ फाइंड करने के लिए एलियन नाम का फंक्शन होता है। ट्रू और फॉल्स पे आते हैं। फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, फोर्थ ट्रू, फिफ्थ ट्रू, सिक्स्थ ट्रू। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एस्केप सीक्वेंसेस सी, सेकंड यूनिक इंडेक्स बी, अपेंड बी, अल्फा न्यूमरिक ए। फिफ्थ आंसर आर स्ट्रिप सी, फाइंड ए। लोअर फंक्शन कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट करता है। सेकंड, अपेंड से वैल्यू लास्ट में ऐड होती है, इंसर्ट से आप जो पोजीशन पे बोलोगे वहां ऐड होगी। लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यू स्टोर इन अ स्क्वायर ब्रैकेट विच इज वेरी इजी टू चेंज। व्हाट इज द लिस्ट विथ नो एलिमेंट्स कॉल्ड एम्प्टी लिस्ट। पॉप से जो पोजीशन दोगे वो पोजीशन का एलिमेंट रिमूव किया जा सकता है, और पोजीशन नहीं दोगे तो लास्ट एलिमेंट रिमूव होता है। क्लियर से लिस्ट में के पूरे ही एलिमेंट रिमूव हो जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस। सो लेंथ है, अपर है, लोअर है, इज अपर, इज लोअर, इंसर्ट, अपेंड, ये सब स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस है। इंडेक्स से आपको दिए गए वैल्यू की पोजीशन पता चलती है। पॉप से, थर्ड क्वेश्चन पे आता हूं मैं, पॉप से जो स्पेसिफाई करोगे उस पोजीशन का एलिमेंट, और स्पेसिफाई नहीं करोगे तो लास्ट एलिमेंट रिमूव होता है।
जबकि रिमूव से आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है एलिमेंट का नाम, और वो स्पेसिफिक एलिमेंट रिमूव होता है। हमने देखा था लेसन में। फाइंड से आपको किसी भी फंक्शन की वैल्यू, सॉरी, फाइंड से आप जो स्ट्रिंग है उसमें एक सब स्ट्रिंग ढूंढ सकते हो। एक्सटेंड से आप मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर सकते हो स्ट्रिंग के एंड में, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना होता है। मैंने ये लेसन में अभी रिवाइज किया है। रिवर्स फंक्शन से लिस्ट जो है वो उल्टी हो जाती है, यानी 10 20 30 होगा तो 30 20 10 हो जाएगा। थैंक यू। हियर आई हैव recorded all the videos. It is in two part 1 and part 2. Thank you.